آپ کو یہ پتہ ہے کہ ذکر قرآن پاک ہے، لیکن اس میں جو بنیادی بات یہ ثابت کرنے کی ہے کہ جو بھی چیز قرآن پاک کے متعلق یا حدیث کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں، اس بات کو کہنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی بنیادی نص ہونی چاہیے، کوئی آیت کوئی حدیث اس کے حوالے سے موجود ہونی چاہیے کہ ہم وہ بات کس طرح کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی طرف سے بنا کے باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ دین کے معاملے میں گھڑ کے باتیں بیان کرنا جو ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس سے ہم جو ہیں اپنے آپ کو دوزخ کے قریب سے قریب تر لے کے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا حی یا قیوم، السلام علیک یا خاتم النبیین، صلوات اللہ علیک یا خاتم النبیین۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے، اور ہم قرآن پاک کو اللہ کا ذکر اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ قرآن پاک نے خود اپنے آپ کو ذکر کہا ہے۔ تو یہ جو دلیل قائم کی گئی ہے قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی بنیاد بھی خود قرآن پاک ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں جا بجا مختلف آیات میں قرآن پاک کو ذکر کہا ہے۔ تو اللہ پاک نے جن جن آیات میں قرآن پاک کو ذکر کہا ہے، ہم ان میں سے کچھ آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر سورہ مدثر جو قرآن پاک کی 74 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 54 سے لے کے 56 تک ہم تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کَلَّا إِنَّهُ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَکَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ ترجمہ ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ذکر ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے، اور یہ لوگ یاد نہیں رکھیں گے مگر جب اللہ پاک خود چاہے۔ وہی تقوی کا مستحق ہے اور وہی مغفرت کا مالک ہے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں قرآن پاک کو ذکر کی صفت سے متصف فرمایا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ان کی رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ یہ سورہ فرقان اور 73 نمبر آیت ہے۔ اور اس کے بعد ہم سورہ سجدہ جو قرآن پاک کا 32 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کرتے ہیں انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ پس ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ان آیتوں کے ذریعے جب نصیحت کی جاتی ہے، یعنی ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ کاف جو 50 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ۔ پس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت یا ذکر فرمائیے جو میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے۔ مزید اللہ پاک سورہ طلاق
जो कुरान पाक का 65वां सूरा है, उसकी आयत नंबर 10 और 11 में फरमाते हैं, या उलिल अलबाबिल लजीना आमनु क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा, और ए उलिल अलबाब, ए अक़ल वालो जो ईमान ले आए हो, बेशक अल्लाह ने तुम्हारी तरफ ज़िक्र को नाजिल फरमाया है। और फिर अल्लाह पाक सूरह अल इसरा, जो कुरान पाक की 17 नंबर सूरा, उसकी आयत नंबर 41 है, उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनी लियज़्ज़क्करू वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफ़ूरा, और बेशक हमने इस कुरान में अंदाज बदल कर बार बार बयान किया है ताकि लोग नसीहत ज़िक्र हासिल करें, मगर इससे उनकी नफ़रत ही मज़ीद बढ़ती जाती है। तो इस आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कुरान में एक ही बात को बार बार मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया है ताकि लोग इससे ज़िक्र हासिल करें, इसको समझें, इसको सीखें। इस आयत से ये मुराद है कि हम जो कुरान पाक के मुख्तलिफ अल्फाज और मुख्तलिफ आयात की तशरीह ख़ुद कुरान पाक से करते हैं, यानी उस लफ्ज़ को कुरान पाक के मुख्तलिफ आयात में किन मानी में इस्तेमाल किया गया है और मुख्तलिफ आयात की तशरीह दूसरी आयत में किस तरह की गई है, वो हम पेश करते हैं। तो इसका बुनियादी मकसद यही है जो इस आयत में पेश किया गया है कि कुरान पाक ख़ुद अपने अल्फाज के मानी को खोल के बयान करता है और ख़ुद अपनी आयत की तशरीह खुद खोल खोल के बयान करता है। इसी को तसरीफ़ुल कुरान कहते हैं। और अभी जो हम ज़िक्र के मानी में ज़िक्र अल्लाह 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 और नमाज अल्लाह का ज़िक्र है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना भी अल्लाह का ज़िक्र है, और जो है साइंस के उलूम अल्लाह का ज़िक्र है, और मुख्तलिफ वाक़या जो कुरान पाक में अंबिया कराम के ज़माने में बयान हुए हैं अल्लाह का ज़िक्र है। तो ये कुरान पाक ने ख़ुद इनको जो है ज़िक्र के नाम से मंसूब फरमाया है और इन सब को ज़िक्र कहा है। तो इससे ये मालूम होता है कि ज़िक्र क्या है और ज़िक्र की तशरीह क्या है और ज़िक्र का मकसद क्या है, इसकी मानवियत क्या है। तो इसी हिसाब से हम जो अभी आयत पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ से, तो हम इस बात से ये साबित नहीं करना चाह रहे कि आपको शायद ये पता ना हो कि ज़िक्र जो है वो कुरान पाक है। आपको ये पता है कि ज़िक्र कुरान पाक है, लेकिन इसमें जो बुनियादी बात ये साबित करने की है कि जो भी चीज़ कुरान पाक के मुतल्लिक़ या हदीस के मुतल्लिक़ हम कह रहे हैं, उस बात को कहने के पीछे कोई न कोई दलील होनी चाहिए, कोई बुनियादी नस होनी चाहिए, कोई आयत कोई हदीस उसके हवाले से मौजूद होनी चाहिए कि हम वो बात किस तरह कर रहे हैं। हमें अपनी तरफ से बना बना के बातें बयान नहीं करनी चाहिए। दीन के मामले में घड़ घड़ के बातें बयान करना जो है ये बहुत बड़ी गुमराही है। इससे हम जो हैं अपने आप को दोज़ख के करीब से करीब तर लेके जा रहे हैं। जब हम कुरान पाक को ज़िक्र कहें तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि कुरान पाक को हम ज़िक्र इसलिए कह रहे हैं कि कुरान पाक ने ख़ुद अपने आप को ज़िक्र कहा है और कुरान पाक की नस से साबित है कि कुरान पाक ज़िक्र है। हमने अपनी तरफ से कोई बात ये नहीं बना ली कि कुरान पाक अल्लाह का ज़िक्र है। अगर कुरान पाक की नस से ये साबित न होता कि कुरान पाक अल्लाह का ज़िक्र है या नहीं है, तो हमको भी हक़ नहीं था कि हम ये बात कहते। लेकिन हम हर वो बात कह सकते हैं जो कुरान पाक से और हदीस से साबित हो, और कुरान पाक और हदीस से साबित है कि कुरान पाक अल्लाह का ज़िक्र है। तो ये हमने बात अपने अक़ल से नहीं कही, हमने अपने बनाए हुए किसी मफरूज़े या मफरूज़ाती इल्म से नहीं कही। ये हमने कुरान पाक और हदीस से बात की कि कुरान पाक अल्लाह का ज़िक्र है, और आपको पता भी है। और ये कुरान पाक की आयत आपके सामने पेश करने का जो मकसद है, वो मकसद भी यही है कि आप तशरीफ़ कुरान की अहमियत को समझें और इसके ज़रिए कुरान पाक की तशरीह करने की कोशिश करें, कुरान पाक को समझने की कोशिश करें, उसके अल्फाज को, उसकी आयत को, उसके मानी को मुतय्यन करने की कोशिश करें। इससे जो हमको और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमें हिदायत का रास्ता बआसानी मिलेगा। उम्मीद है आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत, खुशहाली ज़िंदगी ब उम्र खिज़री आपको, आपके अज़वाज को, आपके औलाद को अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।